Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to AG class. Today I am going to teach you history for class 10th, chapter 3rd, Nationalism in India, part 2. I have discussed about the topic of Khilafat movement, non-cooperation movement, and today I will discuss about the topic differing strands within the movement. Means non-cooperation movement and Khilafat movement started in January 1921, and most social group and organization participated in movement, but different organization or social group have their own way. Every social group wanted to take in the participate in the participation of the Swaraj, but their meanings or their motto are different. सबका एक ही उद्देश्य होता था कि हमको स्वराज लेना है. गांधी जी की जो स्वराज लेने की परिभाषा थी, स्वराज लेने की बात थी, एवरी सोशल ग्रुप हैड देयर ओन मीनिंग्स. उन्होंने अपने अपने अर्थ निकाले. एंड फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मूवमेंट इन टाउन. इन मूवमेंट इन टाउन, this movement started from the middle class. Middle class and more students left their government school. Most teachers resigned their school, and lawyer also give up the court. But they wanted to do the against the British government, and the council elections means many province many provinces were boycotting the council elections, but only in Madras in of Justice Party, they were supporter of the election, and they did not against, because Justice parties wanted to take participate in the election. They are non-Brahmin party, and they consider that we should take power in participating the election or province elections. So they did not give up the boycott of election of province. And in economic sphere or economic sector, very dramatic movement came up at that time. बहुत ही इकोनॉमिक स्तर पे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. फर्स्टली फूड गुड्स मीन्स द ब्रिटिशर द रिलेट्स टू द फूड ग्रुप्स ऑफ ब्रिटिशर. दे द इंडियन डिड नॉट वांट टू टेक. दे बायकॉट एवरी food grains of the Britishers. And about the import of the foreign clothes, did not wear the Indians. The Indian did not want to take the foreign cloth of Britishers, and the import of the clothes were half between the 1921 to 22, and its value dropped from 102 crore to 51 crore, and vanishing Indian textiles of India was डिक्रीजिंग. मीन्स जो कपड़े का उद्योग था, जो ब्रिटिशर का टेक्सटाइल उद्योग था, ये सारे क्रमशः कम होते चले गए. इस तरह के उद्योग धंधे पे बहुत असर पड़ा, और एवरी सिटीजन of India or middle class of the Indian wanted to give the rebel against the Britishers. ये सारी चीज़ें जब ब्रिटिश के खिलाफ हुई, तो एट स्टार्टिंग में तो दे डिड मोर एंड मोर वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिशर, बट आफ्टर सम टाइम the Indian or the some Indians felt that the clothes of khadi was very expensive, and the middle class did not afford to take the Indian khadi dresses. So every Indian slow to come up, means students wanted to go to their school, and the lawyer
ज्वाइन द कोर्ट। अंत में ये चीज़ धीरे धीरे इन लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। खादी महंगी थी और जो उत्पादन जो ब्रिटिश का उत्पादन होता था टेक्सटाइल का या कॉटन का, वो उसमें थोक मात्रा में होता था। सो द कॉस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्लोथ वाज वेरी चीप देन इंडियन खादी। So it is the matter of the movement in town, and next we will discuss about the rebellion in countryside. Rebellion in countryside जो देहात के जो विद्रोह हुए हैं उसमें भी लीड किया गया है पीजेंट के द्वारा। the peasant and local leaders and tribals they have led in the countryside। तो जो कंट्री साइड का इनका आंदोलन था, it is also very popular at that time। For example, we can take about the Awadh। In Awadh, Baba Ramchandra Sannyasi। Ramchandra Sannyasi was a very popular leader, and also he had earlier been to Fiji। ये फिजी में भी रहे हैं और वहाँ से आए थे। And he was also the indentured laborer, and his aim was to oppose the talukdar and landlord। वो उनका जो मुख्य उद्देश्य था उनका विरोध करने का, जो कंट्री साइड का था, उन्होंने भी स्वराज की एक अलग तरीके से परिभाषा निकाली। और उनका जो था वो केवल जमींदार और तालुकदार जो रेंट बहुत ज़्यादा लेते थे या दबाव बनाते थे किसानों पे, और तो इनके खिलाफ इन लोगों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। और इन लोगों का डिमांड था जो पीजेंट का कि द लैंडलॉर्ड शुड एबोलिशन ऑफ द बेगार को समाप्त कर दिया जाए। बिकॉज व्हेन पीजेंट went to work in the field of the landlord or other places, and they did not pay money in place of the work। तो वर्क के बदले में जो उनको वर्क के रूप में धन नहीं मिलता था या उनके श्रम का योगदान नहीं दिया जाता था, तो इसके लिए बेगार ये करना नहीं चाहते थे। और इस तरह से रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू की भी बात आई। कभी कभी ऐसा होता था कि फसलें हो जाती थी नष्ट, बट पीजेंट्स compelled to give the charge of the crops or लगान to the landlord। तो इसका भी इन लोगों ने विरोध किया। फिर इसके बाद नाई धोबी बंद मूवमेंट was organized by the panchayat against the service of the landlord। and nai means barber gave up the service of the landlord, the family of the landlord, also the washerman were against the landlord, against the service of the landlords। इन लोगों ने उनके सर्विस देना बंद कर दिया, और नाई जो उनके यहाँ जाता नहीं था बार बार उनके यहाँ काम करने, इस तरह के भी आंदोलन पंचायतों के द्वारा किए गए। और अवध किसान सभा मीन्स इन यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत में अवध नाम की जगह जो फैजाबाद के पास है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था। एंड आल्सो जवाहरलाल नेहरू लेड एट दैट टाइम फॉर दिस अवध किसान सभा ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेड बनाया गया था इनको। अवध किसान सभा के जवाहरलाल नेहरू बने थे, एंड आल्सो रामचंद्र बोथ। और कुछ दिनों के बाद इसकी जो ब्रांचेज है 300 ब्रांचेज वेयर सेपरेटेड इन द विलेज। 300 ब्रांचेज हो गई। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि इन लोगों का अटैक करना था अगेंस्ट जितने भी इनके ब्रिटिश के खिलाफ जो अगेंस्ट कार्रवाइयाँ थी, जैसे द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड वर अटैक्ड। द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड वर अटैक, जो उनके घर को अटैक किया गया। मार्केट्स वेयर लूटेड एंड ग्रेन होल्डर्स वेयर टेकन ओवर। अनाज जो समूहों में रखा जाता था उसको लूट लिया गया। इस तरह की बातें यहाँ की गई। एंड नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द
ट्रेवल इन द गॉडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश के गॉडेम हिल है वहाँ पर ट्रेवल ने जनजातियों ने विद्रोह किया। एंड वन लीडर अलूरी सीताराम राजू, he wanted to support the travel because in forest travel did not the travel was not give the permission to graze the animals in the field। उनको अपने जानवरों को खेत में चराने की छूट नहीं थी। फिर इस तरह से वो बेगार उनको करना पड़ता था। तो सीताराम जो राजू थे, तो सीताराम राजू ने इसके खिलाफ हुआ। एंड ही आल्सो टोल्ड दैट ही वाज ए इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड, वो भगवान के अवतार हैं। एंड बुलेट डिड नॉट डू अगेंस्ट हिज बॉडी, गोली से भी उनका कुछ नहीं होगा। और उन्होंने इस तरह से गुरिल्ला युद्ध लड़ा और उनका भी एक अलग इंटरप्रिटेशन था, अलग अर्थ निकाला गया स्वराज का, और उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई की। ऑल्दो सीताराम राजू वाज सपोर्टेड टू गांधी जी एंड हिज व्यू, बट ही वाज अगेंस्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोलते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से नहीं होगा। गांधी जी वाज ऑल्दो अ वेरी ग्रेट पर्सन, बट his doing of the things or means of the things were not successful against the Britisher। तो ब्रिटिश के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई की जाए और गुरिल्ला युद्ध इन्होंने लड़ा, बट इन द लास्ट इन 1924 ही वाज एक्साइल एंड एक्सक्यूटेड, और 1924 में इनका आंदोलन खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन मीन्स इन द हिल ऑफ द असम, we can understand। and under the Inland Immigration Act 1859 was passed by the British government। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। और it was not the workers were not permission to leave the tea garden बाय द ब्रिटिशर। बिना ब्रिटिश के परमिशन के ये लोग टी गार्डन नहीं छोड़ सकते थे और इनको वहाँ पे बेगार करना पड़ता था। बट वी कैन से वेरी रेयरली परमिशन टू टेक टू लीव द गार्डन। उनको परमिशन बहुत ही मुश्किल से, ना के बराबर मिलता था, उसको छोड़ नहीं पाते थे। तो इन लोगों ने, इनके दिमाग में आया कि गांधी जी आए हैं, और गांधी जी की बातों को उन लोगों ने सोचा कि भाई गाँव में सबके लिए ज़मीन मिल जाएगी, जो भूमिहीन किसान हैं उनको फ्री में ज़मीन मिलेगी, और दे वेयर वेरी हैप्पी टू टेक। और उसके बाद उन लोगों ने जो वहाँ अथॉरिटी थी उसके अगेंस्ट हिंसात्मक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और इसके बाद इन लोगों ने इन लोगों के दिमाग में था कि हमारा गांधी जी का राज आ जाएगा, और दे डिड मोर एंड मोर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और उन्होंने एक ये अर्थ निकाला स्लोगन वहाँ पे, स्वतंत्र भारत के रूप में हमारा भारत आज़ाद होगा। और दे वेर वेरी एक्साइटेड फॉर फ्रीडम इंडिया टू टेक लिबर्टी। तो इन आंदोलनों में चढ़ बढ़कर इन लोगों ने भी भाग लिया, लेकिन उसे भी ब्रिटिश सरकार ने बड़ी ही बर्बरता के साथ कुचल दिया, और यह आंदोलन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट all the three topics of in this video, and next I will discuss about the towards civil disobedience in next video। and if you feel any problems you can comment in comment box। thank you।